We shall begin today's program with the university song. Kundan, please. जीव सृष्टि सकल समाहिता सर्वभूत हिते रताः जीव सृष्टि सकल समाहिता ओ कामधेनु हि कल्पद्रुम कल्याण श्रेय समर्पिता जीव सृष्टि सकल समाहिता सब गाय के गोपाल हो पशुपति नहीं पशुपाल हो सब गाय के गोपाल हो पशुपति नहीं पशुपाल हो पालन संवर्धन प्रेम से हो वृद्धि बल आरोग्यता दही दूध मक्खन की नदी हो विश्व में अपनी सदी कपिला समी गिर गाय है आंचल भरी अपराजिता हो सर्वभूत हिते रताः जीव सृष्टि सकल समाहिता ओ सर्वभूत हिते रताः जीव सृष्टि सकल समाहिता का आधार है मछुआर मोती मत्स्य सब सौभाग्य की है संहिता सब कर्म में कौशल्य हो आलस्य को नाशल्य हो मनोदिर्बल्य हो तो ज्ञान की हो सुलभता हो सर्वभूत हिते रताः जीव सृष्टि सकल समाहिता हो सर्वभूत हिते रताः जीव सृष्टि सकल समाहिता जीव सृष्टि सकल समाहिता जीव सृष्टि सकल समाहिता Now, I would request Dr. D. Shukla Sir, Principal and Dean, MIDFT, to deliver the welcome address. Please, sir.
On these occasions of the expert in process of IP at MIT Community Messana, I highly Dr. N.S. Lawal, Vice Chancellor, sir, and sir, professor from adjunct faculty, other faculty members of MIT and students. Although Dr. Sweta has would like to highlight some of the SSIP cell at MIT. SSIP is a program of government of Gujarat by policy launched from 2017. The third phase of the grantee MPDF was selected from the Kamdenu University, and an MOU of rupees 5 lakhs was done for 5 years. That was the contribution of the 50% as per the police private institutions category. And would like to inform this was the only food institute under the grantee three phase under GST, and there were institutions. This program, this SSIP policy now about the extent till 16th January 2022, and that MOU program is still going on. Although the past 2 years are majorly washed out due to the COVID activities, major thrust activity in SSIP was to make the sensitized students regarding the development of ecosystem of entrepreneurs and getting some. This was as per the mandate and visions of our Honorable Prime Minister about making more kaushalya and innovation within the student, making giver other than job seeker. That we just tried to SSIP. We have been seminars, food tech programs, and even the proof of concept. More than 15 different dairy products and food products using dairy as and health conscious as well as nutraceutical products developed by the teams of the students. One important aspect is that because today even the alumni of MIDFT are also joined, showcase that as per the policy, the SSIP 2 is coming up after January, end of this phase 1, and there is a provision that a student who is passed out from the university or an institute up to the 5 years from the passing year, he can again join to the institute for having its innovative idea and can develop some proof of concept and then can take it further for patent or IPR and then also startup. And for that, hand-holding is also given at the institutions. So this is a very important aspect, sir. And today we have Dr. Mr. Purvish Patel, who is an entrepreneur and working in a plastic industry, but he is now more about, he himself is an entrepreneur and startup mentor, and so that we organize this talk to sensitize most of our alumni as well as the present students in present scenario, because we have seen that under the COVID situation, though there were so many challenges, but the opportunity were also there because pan India, there were so many startups in healthcare, digital platform, digital edutech, etc. have come up like anything. So this is also a very good chance that how, and most of the innovations are limited up to the lab level because we all are mostly technocrats and we are sound in developing technocrats, but converting it into startup is a bit difficult to the students as well as mentors and faculties. So that hand support or the ways and challenges that Mr. Purvis has been expertise in and has all the stakeholder support like from finance or sales or marketing or registering a company and etc. So I welcome Purvis sir also on this occasion and hope that during his talk more insight on all these aspects will be covered. Thank you, sir. We are very privileged and honored today to have with us Honorable Vice Chancellor, Kamdenu University, Dr. N.H. Kelawala sir, whose invaluable guidance is cherished by all of us.
We thank you, sir, for accepting our invitation and finding time to be with us for today's program. Sir, I request you to kindly give the introductory remarks for today's program and bless all of us with your words of wisdom. Please, sir. Shweta, you can recall sir's address. Okay, sir. I think so. We have lost connection with him. Yes. You can request again to sir. Yeah. I got it. Okay. It was technology problem. Sorry. Sir, So, please. yeah. So Okay. MIDFT established innovation cell under student startup and innovation policy SSIP in July 2018 and organizing expert talks to sensitize the students regarding startup and entrepreneurship opportunity in dairy sector. On this occasion, Dr. D.S. Shukla, principal of MIDFT, Mr. Purvis Patel, founder HNN Solutions. I can see Dr. B.P. Sasar, ex-dean SMC College of Dairy Science, Anand, Dr. Punambai Parvajapati sir, faculty, Dr. Sweta Mudgil, SSIP coordinator from MIDFT, faculty members, and future entrepreneurs in the field of dairy sector. I can see as many as 70 students, present students as well alumni, and it will not be any I can say emphasizing that they will be rather job giver rather than job seekers, so as to make Atmanirbhar Bharat as per the policy of our Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji. As you very well know, India ranks first among world's milk producing nations since 1998 and has got largest bovine population in the world. Of the milk production in India, about 48% of the milk either consumed at the producer level or sold to non-producers in rural area. Whereas 52% of the milk is marketable surplus available for sale to urban consumers. Out of marketable surplus, it is estimated that about 40% of the milk sold is handled by organized sector and rest of the milk being sold by private sectors. It is estimated that the capacity created by private dairies in the last 20 years due to modernization, mechanization is better than some of the cooperative sectors. Private dairy processing units are functioning in all the states. The high concentration is in Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu. For creating infrastructure for strengthening production of quality milk procurement, processing, and marketing of milk and milk products, the central government has been implemented several schemes like NPDD, NDP-1, Dairy Entrepreneurship Development Scheme, Dairy Processing and Infrastructure Development Fund, Animal Husbandry, Infrastructure Development Fund, etc. All these schemes not only improve the quality of dairy products in national market, but also improves the quality of dairy products in international market. India is the largest net exporter of dairy products, especially in Asia. The chief importers of dairy products are mainly developing countries, Bangladesh, United Arab Emirates, Nepal, and Bhutan. As per one national statistics in 2019,
Total output of milk at current price is rupees 7,01,530 crore. And if you compare with two food grains, major food grains, that is paddy and wheat, it is more than paddy and wheat. I can say almost double than the paddy and wheat. The Indian dairy and animal husbandry sector, which currently contributes to around 4.2% of national GDP, emerged as a primary source of income for about 70 million rural households. Most of them are either lineless, small or marginal farmer, or it is estimated that almost 1.2 crore employment will be generated in next years to come. In the last few years, Government of India tries to promote youth not only for job seekers, but also job creator through successful entrepreneurship. As per one report I just read day before yesterday, that India is going to have 100 startups and market value is more than $1 billion. And in this, MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology, and making some of the 300 startups, and they are going to give 40 lakh up to 40 lakhs initial money as well as guidance for the same. And with this, they are going to have Smruddhi, that is startup accelerator for MeitY products, information development and growth, Samruddha. So you can have that great opportunities for new startup or new business ventures. Dairy sector can start up, can classify into few major areas like processing of milk products with value addition. We can know milk is a perishable item. It will be definitely of no use within couple of hours. So how best you can process the milk, and you can make paneer, you can make sweet. And nowadays there is a case to have nutritionally modified indigenous dairy products like low calorie dairy products, herbs, spice, fortified dairy. Even during Corona, we can find turmeric bleaching milk. You can go for this and you can have value-added products and you can earn money too. Unique flavor frozen dairy desserts like frozen yogurts, composite dairy foods like millet lassi, paisam, health promoting dairy products like omega-3 fortified ice cream and fortified milk, non-boiled milk, health promoting attributes, goat milk, even you can sell sheep milk, camel milk, even donkey milk. You can know the price of donkey milk is almost 7,000 rupees per liter. And nowadays, even Amul has started selling or marketing camel milk. So you can have desi breed cattle milk or dairy products like Desi Gir cow. You can sell it at 80 rupees per liter. Even Desi Gir cow ghee, you can sell it at 1,200 to 1,400 rupees per kg. Milk products with special healthcare like low lactose milk or low protein milk can also be marketed. When you become entrepreneur, you can start startup. Second thing is quality control aspect. Indian dairy market always face very tough challenge to maintain the quality of milk throughout the procurement and processing chain. Therefore, quick quality checking facilities are always a great demand for proper maintained product quality. This situation always opens the new opportunities for new dairy startups. For few examples, I can say Delmos India. But so few students from NDRI has started milk adaptation kit, and they have started in such a way. Now their business is around 5 crore per annum. Of course, this is not verified. Third thing is packaging aspects. Packaging is proved as silent salesman of any product. After worldwide banning of single-use plastic, this dairy-based edible packaging material opens a new era of modern dairy business. Dairy-derived ingredients. In this recent pandemic time, it has been proved that milk-derived bioactive ingredients like lactoferrin, immunoglobulins, lactulose, etc. have been widely applied against viral disease. Therefore, new market has been established throughout the world for isolation and purification of these bioactive ingredients from milk for use of targeted disease therapy. Although in India, milk-derived bioactive components selling companies are very less, and you can think of it, you can start this business also. GI Tech products. Recently, Government of India has started One District, One Product campaign, and this opportunities opens a new door of dairy startups. Earlier, area-specified dairy products not able to perform in national as well as international market due to poor shelf life
due to higher microbial count and unhygienic processing condition. Indian area specified dairy products are very unique, like Lal Penda in UP, Feni in Gujarat, Rasgulla in West Bengal. Therefore, proper mechanization and hygienic processing as well as packaging can fetch wide perks in national and international market. Therefore, this is encouraging youth to start new venture under one district, one product campaign too. Dairy processing equipments based on artificial intelligence has also unique market opportunity in this current era. For encouraging startup, different state and central agencies are different, organizing different agri-allied hackathon throughout India for nurturing ideas to a perfect business. The startups have become the missing link between the farmers, input dealers, wholesalers, retailers, and consumers, connecting each of them to each other and providing strong marketing linkages and quality produce on time. It is the best time to be successful dairy entrepreneur and accompanied with idea of Atmanirbhar Bharat. Initially, Dr. Dharmendra Shukla already given whatever they are doing since July 2018. They have started this to synthesize our students, and they have, till date more than 650 students have been supported. More than 60 innovative students projects by providing mentor and lab facilities, and have supported 30 students projects at USC stage. They can start with the flagship of Dudh Sagar Dairy programs by SSIP, such as Students Open Innovative Challenge, Gujarat Industrial Hackathon, Startup Runaway. So in this webinar, I am sure that Purvesh Patel is going to throw some light how our students can start or venture in dairy entrepreneurship, and they can start their venture. So they will be definitely job seeker rather than job giver rather than become job seeker. So in this webinar, I once again congratulate all the students, all the faculties, especially Sweta Mudgil and Dharmendra Shukla, for having such type of webinar for the interest of students. And I am sure students participating, I can say they are the ambassador of this Kamdhanuji. You can multiply whatever things are given today by Purvesh Patel, and how these things can be better, and you can apply it in, and you can become a dairy entrepreneur, so that you will be job giver rather than job seeker. So once again, I congratulate all of you. Thank you very much. Sorry, my video was not working. Sorry, the technology problem. Hello. Hello. Thank you, sir. Thank you for. Okay. Did you hear me? Yes. We have totally and completely heard your audio and your words of wisdom, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. You are present. Shweta, you can now continue with the program. Yes, yes, sir. Today we are very fortunate to have among us Mr. Purvesh Patel. I would like to give a brief introduction about our expert speaker for today. Mr. Purvesh Patel has done his BSc in Chemistry from St. Xavier's College, Ahmedabad, and has done his Masters in Plastics Technology from Central Institute of Petroleum Engineering and Technology, Ahmedabad. He has also done MBA in Marketing from Indira Gandhi Open University. Mr. Purvesh Patel has 25 years of experience in the fields of plastics packaging. He is founder of companies namely Packaging Solutions, which is one of the leading manufacturer of flexible packaging material from plastics, Green Biopack LLB, which produces alternatives of single-use plastics from starch from plant sources and make carry bags, garbage bags, straws, spoons, cups, and plates. HNH Solutions, which is a consultancy firm where turnkey projects of plastic packaging, biodegradable and compostable packaging are being taken. Mr. Purvesh Patel loves to educate the students about plastics, polymers and packaging, and is visiting faculty in several universities and colleges of food technology, dairy science, pharmacy and plastics engineering. He is also associated with several centers of excellence where many students are doing projects under his mentorship.
He's associated with many government and non-government organizations like BNI, VR1, Rotary Club of Ahmedabad Supreme, Lions Club of Knowledge, Sardar Dham, Indian Institute of Materials Management Ahmedabad, and many more. Many of his articles have been published in magazines and leading newspapers. So now I would request Purvish sir to please share his thoughts on today's topic, startup and entrepreneurship in dairy sector, and enlighten the students with his talk. Sir, please. Good afternoon, Dr. N.H. Kelawala ji, Dr. B.A. Sukla ji, Dr. Sweta ji, and other distinguished faculties, and my dear friends, rightly said by Dr. Kelawala ji, that future entrepreneurs. First of all, I would like to thank Dr. Sukla ji for giving me an opportunity to deliver my thoughts on startup and entrepreneurship opportunities in dairy sector. Sweta madam, can you share my screen or can you start my presentation? Yes, sir. Udan, please start Okay. sir's presentation. Yeah, next slide. Next. Next slide, please. Okay, thank you. It is visible to all? Yes, sir. Yes, it is visible. Yes. कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस प्लान या प्लान टू स्टार्ट न्यू बिजनेस फर्स्ट स्टेप है. इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन. Then the purpose, there should be purpose behind any product selection. Vision, कोई भी business में vision important है क्योंकि वो driving factors है. Mission documented होना चाहिए. Then goal with purpose. Goal without purpose is no longer a goal, and goal is always should be specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Now, entrepreneurship is important as it has the ability to improve standard of living and create wealth not only for the entrepreneurs but also for related businesses. Entrepreneurs also help drive change with innovation where new and improved product enable new markets to be developed. Next slide please. प्लान के बाद में प्रोसेस आता है. द प्रोसेस टू स्टार्ट न्यू बिजनेस. सबसे पहला प्रोसेस है आपको मार्केट रिसर्च करना है टू आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रियल वॉइड्स, पेन एरियाज इन द मार्केट, गैप इन डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन मार्केट, प्रोडक्ट क्वालिटीज अवेलेबल इन मार्केट, प्रोडक्ट प्राइस रेंज क्या है, देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिनारियो क्या है. उसके बेस पे प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है. प्रोडक्ट सिलेक्शन में रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, नए ट्रेंड्स क्या है, नई रिक्वायरमेंट्स क्या होगी. जैसे केलावाला जी ने बताया, से पेंडेमिक के बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेयरी सेगमेंट में भी डेवलप हुए हैं, जैसे टर्मरिक मिल्क उन्होंने बताया. ऐसे ही कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आती है या कोई ऑर्गन डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने लगते हैं, डिजीजेस मार्केट में ज़्यादा फैल जाती है, तब ऑलवेज नई प्रोडक्ट के लिए, जैसे इम्यून बूस्टर हो, हेल्थ बूस्टर हो, ऐसी प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है. प्रोडक्ट ऑलवेज शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव. अगर वो प्रोडक्ट क्रिटिकल केयर पेशेंट को सपोर्ट करता हो या उसकी ट्रीटमेंट में
वैल्यू एडिशन देता हो तो वो प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद में प्रोडक्ट प्रोसेस एंड मार्केट वायबिलिटी स्टडी होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारी एजेंसीज है, वो एजेंसी सपोर्ट करती है पोटेंशियल स्टडी करने के लिए। मार्केट में डिमांड क्या रहेगा, डिमांड अभी क्या है, 1 साल के बाद में क्या रहेगा, 2 साल के बाद में क्या रहेगा, 5 साल के बाद में डाउन द लाइन 10 ईयर्स के बाद में क्या डिमांड रहेगा, वो इवेल्युएट करके देता है। कंज्यूमर बेस क्या होना चाहिए, लोकल है, एक्सपोर्ट है, अपनी सिटी में है, अपने स्टेट में है, नेशनल लेवल पे रिक्वायरमेंट है। कंज्यूमर में जेंडर क्या हो, जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, एज ग्रुप स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, वो फाइंड आउट करने में मार्केट वायबिलिटी स्टडी सपोर्ट करता है। कंपटीशन क्या होती है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, कॉम्पिटिटर्स का मार्केट में शेयर क्या है, गैप क्या है, कॉम्पिटिटर्स की प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उससे बेटर या उससे बेस्ट प्रोडक्ट अपना कैसे लॉन्च कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेटेजी क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, वो आइडेंटिफाई करके देगा अपने को। आपके कॉम्पिटिटर कौन है वो जानना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी बिजनेस लॉन्च करने से पहले या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे स्ट्रेटेजी डिजाइन होता है। उसके बाद में स्टेप आता है इवेल्युएशन ऑफ ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D, आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस, लीन मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस है जिसमें रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, फिनिश मटेरियल हुआ, सेल्स एंड मार्केटिंग हुआ, ब्रांडिंग हुआ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, फाइनेंस और फंड रेजिंग। आपकी स्ट्रेंथ इवेल्युएट करनी है आपको, उसके बेस पे प्रोडक्ट जस्टिफाई होगा। बाद में आपकी वीकनेस क्या है उसके ऊपर से टीम सिलेक्ट होगा। आपको टीम ऐसे सिलेक्ट करनी है जो आपकी वीकनेस है वो टीम मेंबर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी जाके बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठेगा। इवन कुछ केस में वी कैन डू कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स द टीम ऑल्सो। उसके बाद में जहाँ पे कमियां रह जाती है टीम मेंबर्स और आपके बीच में या आपके साथ में, वहाँ पे कंसल्टेंट की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी सर्विसेज ली जा सकती है। कंसल्टेंट आपको प्रोडक्ट प्रोसेस एनालिसिस में सपोर्ट करेगा, उसमें करेक्टिव एक्शन बताएगा, मार्केट एनालिसिस करके देगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करवाएगा, मार्केट में पेनिट्रेशन में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, प्रोसेस प्लान क्या होते हैं, एक्शन प्लान क्या होता है, रोड मैप क्या होता है, मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं एक्शन प्लान में, वो सारी चीजें एक कंसल्टेंट आपको गाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अप्रोच करने के लिए आपके पास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड मॉडलिंग होना जरूरी है। 2 टाइप के मॉडल्स होते हैं, एक है बिजनेस मॉडल एंड दूसरा है रेवेन्यू मॉडल। बिजनेस मॉडल में क्या इंक्लूड होता है, तो लैंड, लोकेशन कहाँ पे है, मार्केट से डिस्टेंस कितना है, आपके कंज्यूमर्स कौन है, उनसे कितना दूर है, बिल्डिंग कैसा है, RCC का है, प्रीफैब होना चाहिए, रेंटेड प्रीमाइसिस है, ओन प्रीमाइसिस है, रेंटेड प्रीमाइसिस है तो एग्रीमेंट ड्यूरेशन कितना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीनरी कैसी होनी चाहिए, प्रोसेस कैसी होगी, टीम मेंबर्स कौन है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपके प्रोडक्ट का USP क्या है, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है, कॉम्पिटिटर कौन है, प्रोजेक्शन ऑफ मार्केट पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीजें बिजनेस मॉडल में इंक्लूड होती है जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इवेल्युएट करता है। देन ऑन द अदर साइड रेवेन्यू मॉडल है जिसमें परचेस क्रेडिट कितनी है, सेल्स क्रेडिट कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट में पावर, मशीनरी, मेंटेनेंस, फ्रेट्स, लेबर कितना है, कितने प्रोडक्शन पे ब्रेक इवन आएगा, प्रॉफिट और अर्निंग क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा कहाँ पे जाएगा, रेशियो एनालिसिस क्या है जिसमें कैपेक्स वर्सेस यूटिलाइजेशन, प्रॉफिट वर्सेस अर्निंग, ऐसे डिफरेंट रेशियोज होते हैं, कॉस्ट एनालिसिस क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, CMA डेटा और प्रोजेक्टेड रिपोर्ट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। 2 टाइप की लोन होती है, टर्म लोन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मशीनरी के लिए दी जाती है, और दूसरा है रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल, उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, इंस्टॉलमेंट एंड बैंक में पेबैक प्लान क्या है,
सब्सिडीज एंड अदर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कितने हैं, ये सारी चीजें रेवेन्यू मॉडल में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंटरप्रेन्योर इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। एक बार आपने ये जर्नी स्टार्ट की देन इट इज नेवर एंडिंग वन। जर्नी स्टार्ट करने में सबसे पहला स्टेप है प्रोजेक्ट फाइनेंस, देन कंपनी रजिस्ट्रेशन, देन बैंकिंग सर्विस एंड अकाउंटेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टीएम, कॉपीराइट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, लैंड सिलेक्शन, जो बिलीव करता है उसके लिए वास्तु एनर्जी हार्मोनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, सॉफ्टवेयर लेआउट डिजाइन है, मशीन सिलेक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल एंड लेबोरेटरी सेटअप है, मैन पावर सिलेक्शन है, लेबर लॉज, पीएफ, ईएसआई एंड अदर गवर्नमेंट कंप्लायंसेस लाइक फैक्ट्री लाइसेंस, हेल्थ, फायर सेफ्टी, पॉल्यूशन कंट्रोल, बहुत सारे डिपार्टमेंट की एनओसीज लगती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन प्रोसेस सेटअप है, एसओपी डिजाइन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इनिशियल मार्केट सेटअप है, टेक्निकल सपोर्ट है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आती है, इंश्योरेंस आता है, स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन लाइक एफएसएसएआई, आईएसओ, एचएससीसीपी, जीएमपी, हलाल, बीआरसी, कैपिटल एंड इंटरेस्ट सब्सिडी आएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा जिसमें प्रोक्योरमेंट, परचेस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट आएगा, ईआरपी एंड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, वेबसाइट, कॉर्पोरेट वीडियो, जिंगल, कैटलॉग, सोशल मीडिया प्रमोशन, फ्लायर्स, क्रिएटिव्स वगैरह आएगा, प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफी आएगा। जैसे कोई भी पैकेज आपको डिजाइन करना है या पैकेजिंग मटेरियल डिजाइन करना है तो उसके लिए फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन लीन प्रोडक्शन आएगा जिसमें जीरो डिफेक्ट, लो वेस्टेज, हायर प्रोडक्टिविटी, नो कंप्लेन, नो रिजेक्शन जैसे कंसेप्ट आते हैं। देन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स आएगा, डीजीएफटी सपोर्ट आएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आएंगे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन आएगा, इवेंट एंड प्रमोशन आएगा, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस है, देन बिजनेस कोचिंग आएगा। अभी नेटवर्किंग जो है वो बेस्ट टूल है, तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन में मेंबर्स बनना है जहाँ पे आप अपनी बिजनेस को और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ये स्टेज पे पहुंचने तक आपका ऑलमोस्ट 1 साल हो गया होगा, तब आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल डिजाइन करना है क्योंकि 1 साल तक तो नई मशीन में मेंटेनेंस नहीं आएगा एंड इवन क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन प्रोसेस तो पहले दिन से ही करना है। देन फाइनेंशियल रेटिंग आएगा, एक्सपांशन सपोर्ट आएगा, सोलर सिस्टम का सपोर्ट आएगा जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट या एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए सोलर सिस्टम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोई भी कंपनी एज ए एंटरप्रेन्योर आप जब भी स्टार्टअप करोगे तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आएंगे, जैसे अकाउंटेंट, फाइनेंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, स्टोर एंड परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी एश्योरेंस है। उसके बीच में इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है और एंटरप्रेन्योर एक लीडर होता है और उसको इतने सारे डिपार्टमेंट के बीच में हार्मनी मेंटेन हो, सारे एम्प्लॉय एक टीम के हिसाब से काम करे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, रिलेशनशिप बनी रहे और ग्रोथ होता रहे, वो देखना जरूरी है और उसके लिए ही उसको काम करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है प्रोजेक्ट फाइनेंस। पैसा या फंड कहाँ से आएगा? आपको बहुत जगह से फंड या फाइनेंस मिल सकता है, जैसे बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, स्टार्टअप एंड इनोवेशन स्कीम मेक इन इंडिया के अंडर में चलता है, CGTMSE है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फंड है, वुमेन एम्पावरमेंट है। ये CGTMSE और ये सारी स्कीमें विदाउट कोलेटरल है, उसमें आपको गारंटी या सिक्योरिटी कुछ भी नहीं देना है और CGTMSE में अप टू 2 करोड़ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करेगा। इसमें 25% आपको निकालना है, 75% बैंक देगा, लेकिन सबसे बेस्ट फंड वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर से आएगा जो आपके आइडिया के ऊपर, आपके इनोवेशन के ऊपर, आपके रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इवन जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते हैं, HNI जिसको बोलते हैं, वो भी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NRI इन्वेस्टर भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी आपको कुछ भी फंड नहीं निकालना है, वो ही सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे केलावाला जी ने बताया, ऐसे गवर्नमेंट की सब्सिडी की बहुत सारी स्कीमें अवेलेबल है। सब्सिडी
जो भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कुछ इंटरवल में वापस लौटाता है, जो बिजनेस ग्रोथ के लिए काम में आता है। जैसे कैपिटल सब्सिडी है, उसमें 10 to 25% मिलता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मशीनरी कॉस्ट पे होता है। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑलमोस्ट 5 to 7% होता है। जो फंड आप बैंक से लोगे वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9 to 10%, और उसमें से आपको 5 to 7% एज ए सब्सिडी रिटर्न आएगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 2 से 3% ही हुआ एक साल के लिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आते हो तो एडिशनल 1% है, वुमन एंटरप्रेन्योर हो तो अगेन एडिशनल 1% है, यंग एंटरप्रेन्योर हो जो आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है तो भी आपको 1% एडिशनल मिलेगा। ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसमें सेंटर फॉर एक्सेलेंस है, इंक्यूबेटर्स है, इंडस्ट्री सपोर्ट सेंटर्स है, वहां से आपको 50% जितना सपोर्ट मिले। ERP इम्प्लीमेंटेशन हो, पेटेंट सपोर्ट है, पेटेंट रजिस्ट्री, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए भी ऑलमोस्ट 50% जो फीस है वो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज की हुई है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेना है, लेबोरेटरी सेटअप करना है तो 50% सर्टिफिकेशन फी एंड 50% इक्विपमेंट कॉस्ट पे गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया है। एग्जीबिशन, मार्केट डेवलपमेंट या एक्सपोर्ट प्रमोशन करना हो तो आपको अप टू 5 लाख रुपीज 3 टाइम्स मिलता है। टेक्निकल अपग्रेडेशन करना हो तो 65% कॉस्ट जो है वो पेएबल टू इंस्टीट्यूट मिलता है, जिसमें अप टू 50 लाख रुपीस मिलता है। एक्विजिशन हो, रेजिंग कैपिटल थ्रू SME एक्सचेंज हो, वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन हो, पावर कनेक्शन हो, सोलर हो, उसके लिए भी 75% जितना ऑडिट कॉस्ट, 25 to 40% जितना इक्विपमेंट कॉस्ट पे मिलता है। स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि सस्टेनेंस अलाउंस मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20,000 रुपीज पर मंथ सस्टेनेंस अलाउंस देता है। अगर आप वुमन एंटरप्रेन्योर हो तो ये 25,000 हो जाएगा। और सीड सपोर्ट्स मिलता है 1 साल तक, उसमें अप टू 30 लाख रुपीज देते हैं वो। अगर आपकी प्रोडक्ट सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो एडिशनल 10 लाख रुपीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स है, प्रमोशन इवेंट्स है, जैसे वर्कशॉप, सेमिनार, बूट कैंप्स, हैकाथॉन्स, ग्रांड चैलेंजेस, उसमें आपको अप टू 3 लाख रुपीज मिलते हैं। मेंटरशिप असिस्टेंट्स प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें अप टू 15 लाख रुपीज मिलते हैं। R&D सपोर्ट के लिए अप टू 5 करोड़ आपको मिलेगा। तो वो हैंडसम अमाउंट है कोई भी नए बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब आप नया यूनिट चालू करोगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। अगर उसको डिपार्टमेंट वाइज देखे तो सेल्स एंड मार्केटिंग में अर्जेंसी ऑफ कस्टमर हमेशा अर्जेंसी करेगा, जिसमें होलसेलर हुआ, C&F हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ या कस्टमर, वो अर्जेंसी करता रहेगा। हायर प्रोडक्ट कॉस्ट आएगा, कंपटीशन होगा, इसमें कंपटीशन का कुछ शेयर होगा, उसका क्वालिटी कुछ होगा, उसका प्राइस कुछ होगा, या तो अपने को उससे सुपीरियर प्राइस देना है या सुपीरियर क्वालिटी देना है या मैच करना है, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मैकेनिज्म में डिफरेंट होगा। साल में कुछ वक्त ऐसा भी आएगा जब प्रोडक्ट का डिमांड लो हो जाएगा, मार्केटिंग एक्सपेंस ज़्यादा रहेंगे, सेल्समैन हुआ, उसका सैलरी हुआ, कन्वेंस एक्सपेंसेस हुए, ब्रांडिंग प्रमोशन के एक्सपेंसेस हुए, कस्टमर का हायर क्रेडिट होगा, हायर पेमेंट साइकिल होगा, ये सारे चैलेंज आते रहेंगे। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट सेंटर है वो उसमें प्रोक्योरमेंट, परचेज, स्टोर वगैरह डिपार्टमेंट आते हैं। उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल है जो सबसे बड़ा चैलेंज है। कुछ डेड इन्वेंट्री होगी, डेड स्टॉक होगा, स्लो और नॉन मूविंग रॉ मटेरियल्स होंगे, प्रोसेस मटेरियल्स होंगे, ओवर प्रोडक्शन होगा, ओवर स्टॉक होगा, स्पेस कंस्ट्रेन आएगा, नॉन कन्फर्मेंस आएगा रॉ मटेरियल का, प्रोसेस मटेरियल का, सप्लायर का हाई लीड टाइम रहेगा, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन टाइम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा, मल्टीपल सप्लायर्स होंगे जिसमें सिलेक्शन करना रहेगा, वेंडर ऑडिट होगा। जैसे प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन का खुद का एक साइकिल होता है जिसमें रॉ मटेरियल का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। रॉ मटेरियल लीड टाइम, प्रोडक्शन लीड टाइम को चेंज करता है, डिफेक्ट एंड वेस्टेज जनरेट होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लेंट्स होगी, रीवर्क होगा, रिजेक्शंस होंगे, हायर डाउन टाइम होगा,
लोअर प्रोडक्टिविटी होगी, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, लेबर इश्यूज है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम वीक होगा, काउंटर सिंबल या तो अवेलेबल ही नहीं है या लास्ट टाइम के प्रोसेस पैरामीटर अवेलेबल नहीं है, सो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। ऐसे सारे चैलेंजेस प्रोडक्शन में भी आते रहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में सेल्फ स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो या तो कॉम्पिटिटर के सैंपल को मैच करना है या अपना खुद का ट्रायल एंड एरर करके सैंपल डेवलप करना है। नॉन कन्फर्मेंस आएगा रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, फिनिश मटेरियल का। अदर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट से कभी कभार सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऑलवेज ऐसा लगेगा कि ओवरलोड काम चल रहा है। ये सारी चैलेंजेस डे टू डे आपके लाइफ में आती रहेगी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करते हो, जिससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाना है, क्योंकि जितनी भी चैलेंजेस आएगी वो एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी और उस अपॉर्चुनिटी को अपने को ग्रैब करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इतनी सारी चैलेंजेस थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सिंपलेस्ट वे है, बहुत सिंपल तरीके है। जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आजकल इंडस्ट्री में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी अवेलेबल है जो आपको एकदम अफोर्डेबल रेट में, या तो जिसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया होता है, तो एक स्टेज पे आने के बाद में वो इंडस्ट्री को वापस देते हैं। उसके लिए ये सारी सर्विसेज फ्री में भी देते हैं वो। जैसे गाइडेंस हुआ तो आपके एकेडमिक फैकल्टीज जो है वो आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए, जो प्रोडक्ट सस्टेनेबल हो, प्रोसेस सस्टेनेबल हो, रॉ मटेरियल सस्टेनेबल हो, उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। मेंटोरशिप में इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं जो आपको वायबिलिटी स्टडी, मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस के लिए सपोर्ट करते हैं। उसमें अगर आपको कहीं ड्रॉबैक्स आता है तो आपकी प्रोडक्ट को या आपके प्रोसेस को मॉडिफाई करके वो सस्टेनेबल करने के लिए सपोर्ट करते हैं। काउंसलिंग होता है जिसमें इंडस्ट्री प्रोफेशनल है वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करने के लिए सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पे ज़्यादा क्वालिटी या एट पार क्वालिटी में कैसे बनाए उसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए सपोर्ट करेंगे जिसमें डाउन टाइम कम होगा, प्रोडक्टिविटी टाइम हायर रहेगा, एनर्जी जो कंजम्पशन है वो लोअर हो जाएगा। कंसल्टेंसी में बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे फ्रीलांस कंसल्टेंट्स है जो प्रोसेस सेटअप और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए सपोर्ट करेंगे। ट्रेनिंग में सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, लाइफ स्किल ट्रेनिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। इवन नॉट ओनली यू बट आपके जो भी एम्प्लॉय है उनको भी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जरूर पड़ेगी, क्योंकि ये जब सेटबैक आएगा कोई भी, या प्रोडक्ट फेल होगा या रिजेक्शन आएगा, तब मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ट्रेनर्स अवेलेबल है। कोचिंग में बिजनेस कोच है जो आपको स्ट्रेटेजी डिजाइन करने में, इवेल्युएट करने में, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने में, एक्शन प्लान डिजाइन करने में, रोड मैप कंसिडर करने में, डाइवर्सिफिकेशन, सर्टेन स्टेज के बाद में आपको डाइवर्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रोडक्ट आपके बास्केट में ऐड भी करनी पड़ेगी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान क्या रहेगा उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। सो कुल मिला के अगर आप ये सर्विसेज लेते हो तो आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है और अच्छा ग्रोथ होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। केलावाला साहब ने तो बहुत सारे एरियाज बताए जहाँ पे पोटेंशियल है एज ए डेयरी स्टूडेंट आपको, जैसे टर्मरिक मिल्क बताया, हेल्थ प्रमोटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स बताए, लो लैक्टोज मिल्क है, प्रोटीन मिल्क है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट के क्वालिटी चेकिंग के फैसिलिटीज जो स्पॉन्टेनियस हो, लो बजट में हो सकता है, डिजीज थेरेपीज प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट रेगुलेशन अथॉरिटी रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसमें आप कुछ नया इनोवेट कर सकते हो। क्विक एडल्ट्रेशन किट उन्होंने बताया, पैकेजिंग के बारे में बताया कि पैकेजिंग इज साइलेंस प्रमोटर ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें जो भी है डेयरी सेक्टर में वेस्ट डेयरी प्रोडक्ट, डायग्नोसिस, डेयरी फार्म जैसे एरियाज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। एज ए डेयरी फ्रेटर्निटी आपको अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। वी हैव टू कंसीडर द वेस्ट एज अ न्यू रिसोर्सेज, और उसमें से अगर कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि
काऊ डंग से पेंट बनता है, ऐसे ही गौमूत्र से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती है। मक्खन बनाने के टाइम पे जो बटर मिल्क निकलता है उसमें से पनीर बन सकता है। अगर उसी में फ्लेवर ऐड करते हैं तो आजकल एक कंपनी है जिसने उसमें उसको ड्रिंकिंग योगर्ट नाम दिया है और उससे वो ब्रांडिंग कर रहा है। तो ऐसे वेस्ट में से जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने, तो जो यूनिट आप चालू करोगे एज ए एंटरप्रेन्योर वो सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में डेयरी फार्म्स है। डेयरी फार्म्स में ऑटोमेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अपने यहाँ जितने भी डेयरी फार्म्स है उसमें से मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज है। उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ मैकेनिज्म डेवलप करें तो बेस्ट रहेगा। सिस्टम बना के आप सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हो, फार्म को सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर काम कर सकते हो। मिल्क है, पेरिजेबल गुड्स है, उसको इमीडिएट एट साइट पे लो कॉस्ट में आप कैसे कूलिंग कंडीशन में ला सकते हो। इजी एंड अफोर्डेबल डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो, उससे कैंस है या बॉटल है या कंटेनर्स को कैसे डिसइंफेक्ट या स्टेरिलाइज किया जा सकता है। कैसे डेयरी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे केलावाला साहब ने बताया, आप इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट ऑन थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज कर सकते हो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में कैसे प्रिजर्व कर सकते हो। सस्टेनेबल स्टोरेज डिजाइन कैसा होना चाहिए, वहाँ कहाँ पे चैलेंजेस है, कहाँ पे पेन एरियाज है, उसको आइडेंटिफाई करके एक अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हो। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो सकता है उसके ऊपर काम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एरियाज है जिसमें आप इजीली काम कर सकते हो और बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी उसमें आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट डिजाइन की बात अगर करते हैं तो इनोवेटिव डेयरी प्रोडक्ट ऑलवेज सबसे एक्सलेंट आइडिया है। जो पनीर की बात की साहब ने, उसमें प्रोटीन का रिच सोर्स है, उसमें चॉकलेट या ऐसा कोई फ्लेवर ऐड करेंगे तो बच्चों के लिए कंज्यूम करना इजी हो जाएगा और उनके लिए अभी वो ग्रोथ में बूस्ट करेगा। एनर्जी ड्रिंक है, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक प्रोडक्ट्स है। जो ऑर्गन डिसऑर्डर्स है या डायबिटिक रिवर्सल है, थायराइड रिवर्सल है, नेफ्रो रिवर्सल है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप जो डिजीज थेरापी प्रोडक्ट कैसे डेवलप कर सकते हो, उसको लो कॉस्ट में अफोर्डेबल वे में कैसे अवेल कर सकते हो, इजी वे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मिल्क इज बेस्ट कैरियर फॉर एनी बायोमोलिक्यूल। तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो स्ट्रेस रिलीव कर सकता है, स्लीप डिसऑर्डर का सॉल्यूशन ला सकता है या कोई अदर ऑर्गन डिसऑर्डर को क्योर कर सकता है, ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करके उसका ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करके मार्केट में अगर आप उसको लॉन्च करोगे तो हो सकता है कि कुछ समय के मेहनत और एफर्ट के बाद में वो एक यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है। क्योंकि आजकल बच्चों में कॉरपोरेट कल्चर में बहुत जगह पे हाई लेवल का स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को मिटिगेट करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए, हील करने के लिए आप न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को मिल्क के साथ में कॉम्बिनेशन कर सकते हो। देन अगर एनालिटिकल लैब या डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए जो लो कॉस्ट हो, फास्ट हो, एट साइट रिजल्ट मिले, रिपोर्ट इमीडिएट मिले और उसके कारण लाइन ऑफ एक्शन है या जो करेक्टिव एक्शन है उसको एकदम फास्ट वे में अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिससे जैसे मिल्क एलिट्रेशन हुआ तो सोया प्रोटीन या अदर प्रोडक्ट जो मिल्क में डालते हैं उसको स्पॉट पे कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने परसेंटेज में ऐड हुआ है, वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो इमीडिएट कैसे चेक कर सकते हो, उसकी आप सिस्टम बना सकते हो, मेथड डिजाइन कर सकते हो। कैटल फीड है जो मिल्क में जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिशन है, बायोटा है, उसको इजी वे में, लो कॉस्ट में, फास्ट एट साइट कैसे आइडेंटिफाई करे और कैटल फीड को कैसे मॉडिफाई करे जिससे मिल्क में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो मेंटेन हो। ऐसे कोई एक मेथड आप डेवलप कर सकते हो। कैटल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जिसमें उसके यूरिन से या सलाइवा के सैंपल से एबनॉर्मलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके हेल्थ को कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसको
कैसे बेनिफिट हो, ऐसा फीड या मेडिकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज है जिसमें आप ऑलरेडी मास्टर हो और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भी हो, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और उसके लिए जस्ट एक थोड़ा सा मार्केट रिसर्च आपको करना है, पेन एरियाज आइडेंटिफाई करना है, गैप आइडेंटिफाई करना है, और वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए जिससे प्रोडक्ट सस्टेनेबल हो, कंज्यूमर को बेनिफिट हो। ये सारी एक्टिविटीज आप एज ए डेयरी फ्रेटर्निटी या डेयरी स्टूडेंट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप कंसल्टेंट या इंडस्ट्री एक्सपर्ट का आप सपोर्ट लोगे तो चैलेंजेस तो आपको बहुत आएंगे, वो पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का। लेकिन ऐसे कंसल्टेंट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, आपके जो फैकल्टी मेंबर्स है, उनका आप सपोर्ट लोगे तो आपका ग्रोथ डेफिनेटली होगा, और वो भी शॉर्ट टाइम में होगा। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। इट इज एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आई लाइक टू हैंडल दैट। Thank you, sir. If any student have any doubts or queries, he or she can ask. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर किसी को फ्यूचर में भी कोई डाउट हो या कुछ भी कांटेक्ट करना हो तो इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है। आपको चाहे कोई भी मार्केट रिसर्च करवाना हो, कंसल्टेंट हो या काउंसलिंग हो, ट्रेनिंग हो, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में हम लोग आपको सर्विस देंगे, और उसके लिए हम लोग कोई भी चार्ज भी नहीं लेंगे। Okay. Thank you, sir, for such an enlightening talk, and I'm sure it would have been very beneficial for our students, and many of them would have been now motivated to think into this direction, that is from idea to enterprise. And I would like to share that MIDFT is also working in this direction under the SSIP mandate. And in near times, MIDFT will definitely churn some good startup projects from our institute. And in this, we would need your services. So in that case, we are surely going to contact you for your expertise. डेफिनेटली। Thank you, sir. No program is complete without expressing our gratitude. So I, Dr. Shweta Mudgil, SSIP Coordinator, MIDFT, would like to take this opportunity to propose vote of thanks. We are extremely thankful to Honorable Vice Chancellor, Kamdhenu University, Professor N.H. Kilawala sir, for his kind presence for the function in spite of his busy schedule. I thank you, sir, for accepting our invitation and sparing time for today's program and blessing all of us. I express my heartfelt gratitude to Mr. Purvesh Patel sir for accepting our invitation to be the expert speaker for today's event and delivering a very informative talk today, which will be very beneficial for our students. Thank you, sir. I'm thankful to Dr. D.A. Shukla sir for his support and guidance for today's event. I'm also thankful to Professor B.P. Shah sir, Professor P.S. Prajapati sir, faculty members and students from different colleges for joining today's program. Thank you all. Have a great evening ahead. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Sir. Thank you. Thank you, sir.